Good morning. Good morning, sir. Morning. J010. What's your name? Okay, Amen. Take it. Good morning. Okay, now we'll start. Take it up. We'll do one thing. I'll take an extra class. Is that assignment 1 to 8 in the booklet or PDF? Hey, the booklet which you got, atomic structure booklet. That is also in a PDF format only, no? Yes, sir. Colorful atomic booklet. That one. I have sent it again because I asked some people they got it or not. Some people said they didn't get it right. So I have sent it again. Sir, we should submit lecture one. Lecture 1 to 8 on Wednesday and assignment 1 to 8 on Sunday. These people are coming now. Okay, listen. Now we start. Yeah, I'm talking about those assignments given in PDF is real simple. Yeah, I'll keep doubt class, not a big issue. There will be doubt class. See, for homework, you don't have to send solved example. You have to solve example by yourself so that you will have a zest of all the questions. See, solved examples are given you in order to make your thought process go beyond your current one. So you can think nicely and you can execute the things in a very nice way. That is why solved problems are given to you. And if you have noticed that the PDF which I have sent to you, right, and the Zeal booklet which is there, like with a Zeal symbol, now both the things contain solved examples, and those solved examples are having actually very high standard as compared to the normal solved example in normal booklets, right? So some are very simple, some are very tough. So when you solve that thing, your mind or the thought process will get evolved. So the main purpose is your thought process should get evolved. एक बार तुम्हारा दिमाग चलने लगा ना, उसके बाद कर लोगे. मैं सबकी बात कर रहा हूँ बेटा. मैं ये कह रहा हूँ जो क्वेश्चंस दे रखे हैं पीडीएफ में और लेक्चर नोट्स में सॉल्व एग्जांपल्स में, स्पेशली सॉल्व एग्जांपल सब्जेक्टिव, उसके जो क्वेश्चंस हैं बहुत अच्छे हैं. अरे यार तुम ज्यादा कम कंपेयर मत करो, ठीक है? आई एम आस्किंग दैट देयर आर टू बुकलेट्स. एक तो जील के सिंबल के साथ कलरफुल, ठीक है, और दूसरा नॉर्मल पीडीएफ है ब्लैक एंड व्हाइट. ब्लैक एंड व्हाइट पीडीएफ के अंदर कुछ क्वेश्चन ऐसे जो तुमको नहीं करने हैं, उसमें मैंने ब्रैकेट में लिखा हुआ है ट्राई आफ्टर क्वांटम मॉडल, है ना? तो उनको क्वेश्चन को छोड़ के बेटा मैंने दोनों भेजी है. मैंने नीलेश जी को बोला था दोनों भेजने के लिए. Yeah, all the 34 pages in PDF which I have sent you. That thing submission is on Wednesday, and the lecture assignment 1 to 8, the submission is on Sunday. And remember 34 pages. In that 34 pages, you will have 10 pages of only solved examples. Yes, sir. Yeah. Yes, sir. Make sure that you are doing it properly. And believe me, if that thing done in a very nice way, no,
you can do any question in atomic structure. So that is the motto right now. Okay. So whenever we have started journey, the journey should be very peaceful, right? So that is the thing I have given you that. Yeah. Okay. Now there are better you can refer Ranjit Shai for physical chemistry, but Ranjit Shai there are two versions. One is objective book and other is subjective book. Objective book contain a lot of error. So in between, the student feel very bored after doing it because most of the errors will come. And another is subjective, very concise booklet. The subjective booklet of Ranjit Shai is very good. So which booklet you have? Which book you have of Ranjit Shai? Okay, listen up. Now some peculiar concepts. These are the concepts which are not given in any booklet, but you should know that. Now listen. Whenever I have a nucleus, but I have told you, na. I have told you physical, organic, inorganic booklet, right? Books which you have to purchase. Yes, sir. Okay, I'll just tell you again. Just give me a call. I'll let you know. Listen, I have a nucleus. This is the mass of nucleus, and around this nucleus, an electron is executing a circular motion like this. This is mass of electron. Now listen, mass of electron is much lesser than mass of nucleus. Agreed? Yes, sir. Yes, sir. J013, call me after the class. You have my number? Yeah. Good. We'll discuss every small. Okay. Now listen. Mass of electron is much lesser than mass of nucleus. जब ऐसा होता है ना कि mass of electron और mass of any particle is lesser than a mass of nucleus, तो क्या होता है? वो particle execute करता है circular motion like this. This particle is executing a circular motion like this. Getting a point? Now understand that if the very same scenario is there where a central atom, a central nucleus will be there, like Na, and let's say I have electron. अगर mass of electron comparable हो जाए mass of nucleus के, मतलब there is no much difference. हाफ टाइम हो जाए 1.1/5 हो जाए तो इतना डिफरेंस नहीं है, राइट? तो अगर मास ऑफ इलेक्ट्रॉन मास ऑफ न्यूक्लियस के कंपैरेबल हो जाता है तो क्या होगा? दोनों ही एक पर्टिकुलर पॉइंट के अराउंड रिवॉल्व करेंगे लाइक दिस. तो दोनों ही रिवॉल्व करेंगे, एक ऐसे रिवॉल्व करेगा, एक ऐसे रिवॉल्व करेगा. तो पता लगा एक पर्टिकुलर पॉइंट के अलाउंग तुम्हारा न्यूक्लियस और तुम्हारा इलेक्ट्रॉन दोनों ही रिवॉल्व कर लाइक दिस. गेटिंग अ पॉइंट? ये सिचुएशन तब आती है जब मास ऑफ न्यूक्लियस और मास ऑफ इलेक्ट्रॉन में इतना ज्यादा डिफरेंस नहीं होता. ना अब तुम बोलोगे सर हमने ये किया है कि मास ऑफ इलेक्ट्रॉन तो बहुत कम होता है मास ऑफ न्यूक्लियस से, तो दिस मॉडल इज करेक्ट. आई सेड yeah, this is correct. But what about the scenario where they are formulating their own question, where they are changing electron with some other particle? Then what will you do? Are you getting what I'm trying to say here? So some other particle matlab anything. See, the thing is, it's not me, right? I can make any model according to me, correct? ये सब मेरे ऊपर है, correct? yes sir. So if I'm having this right to formulate any question,
So I'll do one thing. Again, I'll go to a hypothetical universe. I'll be saying that mass of electron is same as mass of nucleus. Then what you'll do? The main purpose is I should solve the question in a nice way. Correct? Yes, sir. Now listen to it. Very important, right? Now, whenever the electron and the system are revolving around a particular point, that particular point, everyone, that particular point is known as center of mass. तो जब दोनों का मास कंपैरेबल होता है ना, तो दोनों ही रिवॉल्व करते हैं, ठीक है, और दे विल रिवॉल्व इन अ पर्टिकुलर पॉइंट व्हिच इज नोन एज सेंटर ऑफ मास. सेंटर ऑफ मास का effective mass यूज करना होता है फॉर्मूला के. Now, how to calculate the effective mass for center of mass? Very simple. Now, shall I rub this? Yes, sir. हाँ, इसमें भी कुछ नहीं करना, बस बता रहा हूँ कि अगर सिस्टम ऐसा हुआ तो they will revolve around a particular center of mass. Now, how to calculate that particular center of mass? How they will move in that particular area? That is a portion which we will do in rotational mechanics. तो फिजिक्स के अंदर 11th क्लास के अंदर ही चैप्टर है रोटेशनल मैकेनिक्स करके, उसके अंदर सॉल्व करोगे. बट नाउ आई एम जस्ट गिविंग यू हाउ टू यूज इट, राइट? नाउ यू शुड अंडरस्टैंड हाउ टू यूज दैट कॉन्सेप्ट. दैट्स इट. सर, दोनों चीजें एक ही प्लेन में रिवॉल्व कर रही होगी. हाँ. ओके. हाँ. नाउ अंडरस्टैंड. तो एक फंडा होता है रिड्यूस मास का, 1 by mu, where mu is reduced mass. This is not nu, it is mu, m e w, mu, and that symbol was mu. This is nu, this is mu, m n. Understood? अरे म्यू है, म्यू म्यू इस सिंबल Yes, sir. क्या कहते हैं? Mu. हाँ, म्यू कहते हैं, म्यू. हाँ, म्यू कहते हैं. ठीक है, ठीक है, डन. तो 1 by म्यू इज इक्वल टू 1 by me डैश, नया मास इलेक्ट्रॉन का, प्लस 1 by mn, that is mass of nucleus. So reduced mass becomes equal to me dash into mn divided by me dash plus mn. ये समझ में आया? हाँ सर. कुछ नहीं किया है, एलसीएम लेके ऐड कर दिया. कोई दिक्कत है क्या? What is reduced mass? रिड्यूस मास वो सेंटर ऑफ मास का, वो सेंटर ऑफ पॉइंट का मास है जहां पे ये पूरा सिस्टम रिवॉल्व कर रहा है. तो मैंने क्या किया, एक जो मास रिवॉल्व कर रहा था सर्कुलर मोशन में, उसको पॉइंट मास की तरह ट्रीट किया और उसका पॉइंट मास निकाला सेंटर ऑफ मास पे. मैंने कहा था इस चीज को तुम रोटेशनल मैकेनिक्स में करोगे. बस ये समझ लो अफेक्टिव मास है पूरे सिस्टम का, जब पूरा सिस्टम एक पॉइंट में रिवॉल्व करता है. बात समझ में आई? इट्स जस्ट एन इफेक्टिव मास व्हेन अ सिस्टम इज रिवॉल्विंग अराउंड अ पर्टिकुलर पॉइंट. इतना समझ में आया? या चलो, अभी इतना समझ में आया तो हटाओ उसको. अरे Yes, sir. नाउ लिसन 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 लिसन. We'll be using very important concept.
reduced mass is the mass of the overall system whenever the system is moving or revolving around a single point. जब पूरा सिस्टम जैसे न्यूक्लियस और इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करता है एक सिंगल पॉइंट पे, तो उस सिंगल पॉइंट का जो मास रहता है ना, उसे रिड्यूस मास कहते हैं. मैं सब बताता हूँ म्यू क्या हो गया, म्यू कैसे हो गया, सब बताता हूँ. ठीक है, गिव मी अ मिनट. राइट नाउ हमको पता है कि जो मास यूज करना है मेरे को, दैट इज रिड्यूस मास, व्हिच इज इक्वल टू मास ऑफ न्यू इलेक्ट्रॉन, mass of nucleus divided by mass of new electron plus mass of nucleus. Agree? Agreed? Yes, sir. अब सुनो ढंग से सुनो. वेलोसिटी का फॉर्मूला होता है 2.18 into 10⁶ मीटर पर सेकेंड into z/n. क्या ये मास के ऊपर डिपेंड करता है क्या? नहीं. हाँ, नो सर. तो वेलोसिटी सेम रहेगी, उसमें कुछ फर्क नहीं पड़ेगा. नहीं पड़ेगा. पॉइंट नंबर 1 क्लियर? पॉइंट नंबर 1 क्लियर? Yes, Yes, sir. sir. Yes, sir. Now this is clear. Velocity is independent of mass. Sir, next, what about radius? Radius of shells? Inversely proportional to the mass. Inversely proportional to mass. Agreed? Yes, sir. यार अगर मुझे पता है radius of shell was inversely proportional to mass of electron, तो मुझे अब mass of electron की जगह क्या यूज करना पड़ेगा? म्यू. मुझे मास ऑफ इलेक्ट्रॉन की जगह क्या यूज करना पड़ेगा? म्यू. सुनो मतलब मुझे मास ऑफ इलेक्ट्रॉन की जगह म्यू यूज करना है. ठीक है, ध्यान से सुनना. 0.529 into n²/z, ये रेडियस का फॉर्मूला है. इस रेडियस के फॉर्मूले के अंदर मास ऑफ इलेक्ट्रॉन ऑलरेडी डिवाइडेड है. मास ऑफ इलेक्ट्रॉन ऑलरेडी डिवाइडेड है, तो पहले तो मुझे वो मास ऑफ इलेक्ट्रॉन हटाना पड़ेगा, उसकी जगह मेरे को रिड्यूस मास डालना पड़ेगा. एग्री? ये फॉर्मूला तभी आया ना जब मास ऑफ इलेक्ट्रॉन डिवाइड Yes, किया. sir. अब मुझे ना मास ऑफ इलेक्ट्रॉन जो डिवाइडेड है उसको हटाना है, उसकी जगह क्या डालना? सर मल्टीप्लाई कर दीजिए ऊपर. एग्जैक्टली, मेरा भी यही सीन था. अगर सपोज करो एक एक्सप्रेशन है, उसके अंदर ऑलरेडी 1/x मतलब 5 का x हो रखा है, ऑलरेडी x से डिवाइडेड है. मैं चाहता हूँ मुझे x से डिवाइड नहीं करना, y से डिवाइड करना है. तो पहले मैं इसको x से मल्टीप्लाई करूँ और y से डिवाइड करूँ ताकि x कट जाए और y आ जाए सिर्फ. अगर ऑलरेडी यहाँ मास ऑफ इलेक्ट्रॉन है और मुझे रिड्यूस मास चाहिए, तो मैं इसको मास ऑफ इलेक्ट्रॉन से मल्टीप्लाई कर देता हूँ और रिड्यूस मास से डिवाइड कर देता हूँ ताकि मास ऑफ इलेक्ट्रॉन कट जाए और जो मुझे चाहिए वो आ जाए. करेक्ट? यस सर. ओ बच्चा पार्टी, किसी को डाउट? नहीं सर. वेलोसिटी ऑफ न्यूक्लियस. हाँ एग्जैक्टली उस पॉइंट पे. हाँ No doubt, sir. No doubt, sir. वेरी गुड. अरे वेलोसिटी ऑफ न्यूक्लियस और इलेक्ट्रॉन सेम हो जाएगी जब सेंटर ऑफ मास पे डोलेंगे करेंगे, और वो सेम ही रहेगी, चेंज नहीं होगी. लिसन एवरीवन, इट विल बिकम व्हाट? तो 0.529 एंगस्ट्रॉम को अगर मैंने मास ऑफ इलेक्ट्रॉन से मल्टीप्लाई किया तो उसका मास ऑफ इलेक्ट्रॉन कट गया. अब मुझे किससे डिवाइड करना पड़ेगा? रिड्यूस मास, which is into Zn²/z. Agreed? Agreed? चलो अब सुनो ढंग से. अगर दो केस दे रहा हूं, 2 केस. हाँ, केस 1, mass of electron becomes double, triple, quadruple, pentuple, जो भी है.
बढ़ा रहा हूँ, नॉर्मली बढ़ा रहा हूँ। तो मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, जो नया मास ऑफ इलेक्ट्रॉन है, अगर 2 टाइम मास ऑफ इलेक्ट्रॉन हो गया, 3 टाइम मास ऑफ इलेक्ट्रॉन हो गया, 4 टाइम मास ऑफ इलेक्ट्रॉन हो गया, स्टिल ये मास ऑफ इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के मास से तो कम ही है ना। हाँ सर। अगर मैंने इलेक्ट्रॉन का मास डबल ट्रिपल भी किया तो अभी भी न्यूक्लियस का मास जो होगा वो इलेक्ट्रॉन के मास से बहुत ज्यादा होगा। यस और नो? यस याद ही रहे। तभी तभी मैंने क्या कहा था, Me प्लस Mn, जो मास ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा और जो मास ऑफ न्यूक्लियस होगा। हाँ नहीं, अरे लिसन लिसन, mass of new electron is 2 times mass of electron, older electron, 3 times mass of electron, 4 times mass of electron. सही नहीं है क्या? Why I am doing this, I'll let you know. एक बार बताओ, still हाँ हाँ listen, अब मेरी बात समझना। Mass of electron, mass of nucleus will be approximately equal to mass of nucleus only. हाँ रुको अभी 2 मिनट, 2 मिनट रुको। हाँ ये सही लिखा कि नहीं लिखा? यस सर। अगर इलेक्ट्रॉन सेल डबल ट्रिपल भी हो गया, सेल मास ऑफ न्यूक्लियस से तो कम ही है, तो मास ऑफ न्यूक्लियस प्लस मास ऑफ इलेक्ट्रॉन अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू मास ऑफ न्यूक्लियस। एग्री? अब आगे चलते हैं। इस केस के अंदर तो 0.529 एंगस्ट्रॉम इनटू Me डिवाइड बाय रिड्यूस मास। रिड्यूस मास क्या था? Me dash Mn divided by Me plus Mn, right? Yes, sir. यस सर। बेटा Mn Me से बहुत बड़ा है, पता नहीं क्या। अगर न्यूक्लियस की बात करूं तो न्यूक्लियस में प्रोटॉन होता है। प्रोटॉन का मास 1836 टाइम्स मास ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है। तो अगर डबल भी कर दिया तो भी बहुत बड़ा ही हुआ ना। अरे बेटा Me नहीं हो, Me डैश है। रुको तो 2 मिनट रुको तो। एक काम करो, इतना लिखा वेलोसिटी वाला, पहले वेलोसिटी वाला लिखो, उसके बाद रेडियस और उस पे आता हूँ एनर्जी पे। अभी ना दिमाग खुल जाएगा, सिर्फ पहले सुनना समझना, उसके बाद क्वेश्चन पूछना, ठीक है? चलो अब रेडियस कर रहा है मेरे को, रेडियस। ओके तो लिसन, रेडियस बाकी है, एनर्जी बाकी है, 2 ही चीजें बाकी है। रुको, okay listen, radius was 0.529 angstrom into n square by z। ठीक है, मुझे रेडियस चाहिए अपने हिसाब से, रेडियस न्यू इन केस ऑफ रिड्यूस मास। तो 0.529 एंगस्ट्रॉम इंटू n स्क्वायर बाय z, इसको एक्चुअल मास से मल्टीप्लाई किया और रिड्यूस मास से डिवाइड किया। ठीक है, तो मेरे पास एक फॉर्मूला आया 0.529 एंगस्ट्रॉम इंटू n स्क्वायर, 0.529 एंगस्ट्रॉम, रिड्यूस मास हो जाएगा तुम्हारा Me डैश Mn
डिवाइड बाय Me प्लस Mn into Me into n स्क्वायर बाय z। ठीक है, अब सुनना, केस वन, when the mass of electron becomes hypothetical electron becomes 2 times mass of electron, 3 times mass of electron, 4 times mass of electron, still Me dash is much lesser than mass of nucleus। अगर मास ऑफ इलेक्ट्रॉन को डबल भी कर दो, ट्रिपल भी कर दो, फिर भी वो बहुत छोटा रहेगा न्यूक्लियस से। अब एक बच्चे ने मुझे सर कब तक ऐसा कर सकते हैं, यार देखो लॉजिकली अगर मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, मास ऑफ न्यूक्लियस बाय मास ऑफ नया इलेक्ट्रॉन का रेशियो अगर 100 है ना, तो इस रेशियो तक तुम कर सकते हो। क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए 20 रेशियो तक ले सकते हो कि अगर न्यूक्लियस 20 टाइम्स भी बड़ा है इलेक्ट्रॉन से मास, तभी भी उसको इग्नोर कर दो। ये ऑब्जेक्टिव जिस तरह न्यूमेरिकल क्वेश्चंस के लिए आइडियली सेइंग जब इनका रेशियो 100 होगा ना, तब जब तक इनका रेशियो 100 या उससे ज्यादा है तब तुम उसको निगलेक्ट कर सकते हो। मतलब मास ऑफ न्यूक्लियस 100 टाइम्स मास ऑफ इलेक्ट्रॉन है तब से क्या कहते हो तुम उसको निगलेक्ट कर सकते हो। अगर 100 से कम हो गया तब नहीं कर सकते हो। तो बात समझ में आई कि मास ऑफ इलेक्ट्रॉन जब तक इन दोनों का रेशियो 100 तक रहेगा, उससे ज्यादा रहेगा, तब तक तुम उसको निगलेक्ट कर सकते हो। इतना समझ में आया? ओए समझ में आया इतना? yes sir। हाँ सुनो, अभी मास ऑफ इलेक्ट्रॉन जो है वो मास ऑफ न्यूक्लियस से बहुत कम है। इतना कम है कि मास ऑफ इलेक्ट्रॉन प्लस मास ऑफ न्यूक्लियस should be equal to mass of nucleus। लिख सकता हूँ? लिख सकता हूँ? yes sir। तो ये जो फॉर्मूला आया 0.529 एंगस्ट्रॉम into n स्क्वायर बाय z into Me, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन से मल्टीप्लाई किया था n स्क्वायर बाय z डिवाइडेड बाय Me प्लस Mn किसके इक्वल हो जाएगा? Mn किसके इक्वल होगा? Mn आपस में क्या होगा? कट हो जाएंगे। कट हो जाएगा, राइट? तो बचेगा क्या? गेटिंग इट? अरे हाँ या ना? यस सर। अब एक बात बताओ, सपोज करो Me डैश का जो मास है, नए इलेक्ट्रॉन का जो मास है वो n टाइम्स हो गया पुराने इलेक्ट्रॉन के मास से, तो Me डैश को NMe लिख दूं? कोई दिक्कत इसके अंदर? सर तो रुक जाओ, एक मिनट, बिकॉज मैं ऑलरेडी वहां पर है। तो अगर मास ऑफ नया इलेक्ट्रॉन 2 टाइम्स हो गया, 3 टाइम्स हो गया, 4 टाइम्स हो गया, तो x लिख सकता हूँ? यस सर। हाँ, will be like 0.529 angstrom into Me into n square by z divided by x Me। Me से Me गया तो आया 0.529 angstrom into n square by z divided by x। याद करो मैंने क्या कहा था जब हमने ये डेरिवेशन किया था? मैंने कहा था देख लो मास ऑफ इलेक्ट्रॉन के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। मैंने फिर बोला था मास ऑफ इलेक्ट्रॉन डबल हो जाए तो तुमने कहा सर रेडियस हाफ हो जाएगा। मैंने कहा मास ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रिपल हो जाए, तुमने कहा रेडियस 1/3 हो जाएगा। मैंने कहा मास ऑफ इलेक्ट्रॉन 4 टाइम्स हो जाए, तुमने कहा रेडियस 1/4 टाइम्स हो जाएगा। मैंने कहा वेरी गुड, यही हो रहा है, यही हो रहा है जो हमने पहले यूज कर लिया है। yes sir। यस सर। किसी को कोई भी डाउट इसके अंदर? no sir। नहीं ना, ये हमने पहले यूज कर रखा है, बस डिराइव अभी कर रहे हैं। सर इंस्टेड हम बस पुराने वाले फॉर्मूला में जाके Me की वैल्यू ही सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं। हाँ, क्योंकि Me प्लस Mn अप्रोक्सीमेटली Me ही है, करेक्ट? सर तो Mn कुछ ज्यादा खास फर्क कर नहीं रहा है मेरे लिए, कर गया ना वो रिड्यूस मास में, हाँ सर। यूजलेस हो गया मेरे लिए। अब रुको, केस 2,
हाँ, approximately, sorry, नया मास का इलेक्ट्रॉन will be approximately equal to mass of nucleus. अगर नया मास इलेक्ट्रॉन का मास ऑफ न्यूक्लियस के इक्वल हो गया, गेटिंग इट, अप्रोक्सीमेटली इक्वल हो गया और कंपैरेबल हो गया, तो क्या होगा? तो क्या मैं me dash plus mn को इग्नोर कर सकता हूँ क्या? नहीं सर, कर सकता हूँ, बताओ। नहीं सर, नहीं कर सकता ना? हाँ, नहीं कर सकता। तो एक काम कर, 2mn नहीं लिख सकते। क्या? अगर अप्रोक्सीमेटली इक्वल हो गया तो 2mn नहीं लिख सकते। नहीं रे बाबा, ये कंपैरेबल बोला है, रेशियो बता ना 1:20। हाँ वो, हाँ ठीक है सर। कंपैरेबल हो गया, ठीक है ना? उस केस के अंदर जब ये कंपैरेबल हो गए तो एक काम करते हैं, इसको हटाते हैं। हटाओ इसको। 1 मिनट सर। यस। हाँ, लिख लो। So done. डन। डन। चलो नाइस। अभी जब ये कंपैरेबल हो गए सर तो ये टोटल एनर्जी तो n टाइम्स ऑफ प्रीवियस एनर्जी हो जाएगी ना? क्या? टोटल एनर्जी n टाइम्स ऑफ प्रीवियस एनर्जी हो जाएगी। हाँ, वो ऑब्वियसली बात है इस केस के अंदर, राइट? यस। Radius of NH shell, ठीक है। Now this is case 2. Any dash is comparable to Mn और any dash is equal to x time Me. सही है ना? अरे हाँ है ना? हाँ सर। Very good. So radius of NH shell is equal to 0.529 angstrom into Me divided by Me dash will become x Me Mn divided by x Me plus Mn into n square by। तो एक काम करते हैं, Me से Me गया, Me से Me गया, Mn को डिवाइड कर देते हैं, देखते क्या आता है, ठीक है? तो 0.529 एंगस्ट्रॉम डिवाइड बाय x I'll be getting x Me by Mn plus 1. Yeah, into n square by। This is a new thing which you got. कोई डाउट इसके अंदर? No, sir. अच्छा, अब मेरी बात सुनो, ये बहुत कॉम्प्लिकेटेड दिख रहा है ना? कहो हाँ। हाँ सर, बहुत कॉम्प्लिकेटेड। कहो हाँ, अच्छी यस बात सर, वेरी कॉम्प्लिकेटेड। ये इम्पोर्टेंट है क्या? नहीं, इतना इम्पोर्टेंट नहीं है। जेई के अंदर चांसेस हैं कि 0.01% चांसेस है कि आ जाए, उसके लिए मैं मत्था पच्ची कर रहा हूँ, अदरवाइज नहीं करता। ओलंपियाड में आ सकता है, जो भी हायर लेवल के ओलंपियाड होते हैं, राइट, उसमें आएगा। बाकी कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन लाइक हाँ, ओलंपियाड वाले कैटेगरी के अंदर आएगा।
तो उसके लिए पढ़ना है तो वेरी गुड, यू हैव टू अंडरस्टैंड दिस, ठीक है। अदरवाइज वो मास ऑफ इलेक्ट्रॉन डबल हो गया तो रेडियस आधा हो जाएगा, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन डबल हो गया एनर्जी डबल हो जाएगा, तो वो तो तुमको पता ही है क्योंकि वो हमने कर रखा है ऑलरेडी, ठीक है। ये थोड़ा एक्स्ट्रा वर्जन है इसका। हाँ, आई लेट यू नो। मैं ना इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करके समझाता हूँ, समझाऊं एक क्वेश्चन की फॉर्म में। Yes, sir. Yes, sir. अच्छा सुनो, समझना, सपोज करो हाइड्रोजन एटम के अंदर मास ऑफ इलेक्ट्रॉन मास ऑफ न्यूक्लियस के इक्वल हो गया, so the mass of electron becomes equal to mass of न्यूक्लियस। न्यूक्लियस। या फिर एक काम करते हैं, उल्टा करते हैं, मास ऑफ न्यूक्लियस मास ऑफ इलेक्ट्रॉन के इक्वल हो गया, मास ऑफ न्यूक्लियस मास ऑफ इलेक्ट्रॉन के इक्वल हो गया। नहीं, दोनों में फर्क है दोनों स्टेटमेंट में फर्क है। इलेक्ट्रॉन का मास न्यूक्लियस के जितना होना मतलब प्रोटॉन के जितना होना, या प्रोटॉन का मास इलेक्ट्रॉन के जितना होना, दोनों में फर्क है। अरे समझ रहे हो मैं क्या कह रहा हूँ? इलेक्ट्रॉन का मास प्रोटॉन के इक्वल होना है, फिर प्रोटॉन का मास इलेक्ट्रॉन के इक्वल होना, दोनों स्टेटमेंट में बहुत फर्क है। बट सर नेचर तो सेम होएगा ना उनके रिएक्शन का एक दूसरे से। अरे बात वो नहीं है, बात ये है कि एक केस के अंदर दोनों का मास हो रहा है 1.67 इंटू 10⁻27 और एक दूसरे केस के अंदर मास हो रहा है तुम्हारा कितना 9.1 into 10 to the power minus 31. फर्क है कि नहीं है, पहले ये बताओ। है सर। है ना, तो एक काम करते हैं, सुनो, अगर मैंने बोला न्यूक्लियस का मास ऑफ इलेक्ट्रॉन के इक्वल हो गया तो रिड्यूस मास क्या हो जाएगा? मास ऑफ न्यूक्लियस इनटू मास ऑफ इलेक्ट्रॉन डिवाइडेड बाय मास ऑफ न्यूक्लियस प्लस मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। कोई डाउट इसके अंदर? और मैंने क्या बोला, मास ऑफ न्यूक्लियस जो है वो इलेक्ट्रॉन के मास के इक्वल हो गया, तो इसका मतलब हो गया आई विल बी गेटिंग मास ऑफ इलेक्ट्रॉन इनटू मास ऑफ इलेक्ट्रॉन डिवाइडेड बाय 2 टाइम्स मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। कोई डाउट? No. तो मास ऑफ इलेक्ट्रॉन से मास ऑफ इलेक्ट्रॉन गया तो रिड्यूस मास कितना हो गया? Me/2। Me/2. तुमको ना नया रेडियस निकालना है, नए रेडियस में 0.529 एंगस्ट्रॉम लिखोगे, उसको मल्टीप्लाई करोगे मास ऑफ इलेक्ट्रॉन से और उसको डिवाइड करोगे रिड्यूस मास से। व्हाट इज द रिड्यूस मास? Me/2. Me/2 और इनटू n²/z। n से नहीं गया, ऊपर आ गया 2, तो 2 टाइम्स 0.529 एंगस्ट्रॉम इनटू n²/z। ये समझ में आया? हाँ. यस सर। हाँ, तो एक काम करना, आज के बाद रिड्यूस मास निकालना अलग से, रिड्यूस मास निकालने के बाद रिड्यूस मास को डिवाइड कर देना, ऊपर मास ऑफ इलेक्ट्रॉन को मल्टीप्लाई कर देना, जो भी फिगर है वो तुम्हारा फाइनल आंसर है। बात समझ आई? इस फॉर्मूले को यूज मत करो बिकॉज बहुत कॉम्प्लिकेटेड दिखता है, नॉर्मल कर लो, रिड्यूस मास कैलकुलेट कर लो। जरा वापस सुनना, जरा वापस बता आपने क्या बोला? मैंने बोला इस फॉर्मूले को यूज ना करो, तुम एक काम कर लो, मैंने बोला एक काम कर लो, रिड्यूस मास अलग से निकाल लो, रिड्यूस मास अलग से निकाल दिया, उस रिड्यूस मास को डिवाइड कर लो और उसमें मास ऑफ इलेक्ट्रॉन से मल्टीप्लाई कर लो, तुम्हें आंसर मिल जाएगा। वही मैंने किया, पहले रिड्यूस मास निकाला, रिड्यूस मास निकल गया Me/2। रिड्यूस मास निकालने के बाद मैंने रिड्यूस मास से डिवाइड किया और मास ऑफ इलेक्ट्रॉन से मल्टीप्लाई किया, बात खत्म। कोई दिक्कत? सर हमेशा वो रेडियस Me/2 आएगा? 1 सेकंड, हमेशा नहीं आएगा ना, वो तो इस कंडीशन में आया अगर अच्छा। मैंने बोल दिया था मास ऑफ न्यूक्लियस 2 टाइम मास ऑफ इलेक्ट्रॉन हो गया, अभी भी तो कंपैरेबल ही है। हाँ. हाँ, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? 2, यहाँ पे भी 2 आ जाएगा, तो 2 Me/3 आ जाएगा। बराबर. अलग अलग केस में अलग अलग हो गया ना। ओके समझ गया. समझ में आई ना बात? तो मैंने पहले रिड्यूस मास कैलकुलेट किया इस केस के हिसाब से, दूसरे केस के हिसाब से दूसरा आ जाएगा। रिड्यूस मास कैलकुलेट किया, उसको डिवाइड किया, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन से मल्टीप्लाई किया, डिवाइड किया और जो फाइनल आंसर आया मैंने रिपोर्ट किया।
अच्छा, R003 रेडियस के फॉर्मूले के अंदर ऑलरेडी मास ऑफ इलेक्ट्रॉन डिवाइडेड है, आया ना? हाँ, तो अगर मेरे को मास ऑफ इलेक्ट्रॉन की जगह रिड्यूस मास चाहिए तो मेरे को मास ऑफ इलेक्ट्रॉन से पहले मल्टीप्लाई करना पड़ेगा ताकि मास ऑफ इलेक्ट्रॉन कट जाए और उसकी जगह रिड्यूस मास डालना पड़ेगा। या समझा? वेरी गुड, इट्स ओके। ए सर वापस Yes, sir. Now listen. ये सिर्फ ओलंपियाड के लिए है, गेटिंग इट? जिसको ओलंपियाड क्रैक करना है और दे हैव हाई एस्पिरेशन, ये छोटी छोटी चीजें उसके लिए है, बड़ी बड़ी चीजें तो हमने ऑलरेडी खत्म कर ली है। सुनो अभी, एनर्जी वाज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। कौन क्या किधर बोला? देखो, हाँ एम भी दिया होगा, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन दिया होगा, टेंशन मत। लिसन, अगर केस 1 है कि मास ऑफ इलेक्ट्रॉन जो है, नया इलेक्ट्रॉन, वो अभी भी मास ऑफ न्यूक्लियस से कम है, मास ऑफ न्यूक्लियस से कम है, तो मैंने क्या बोला था? डायरेक्टली मुझे पता है एमई के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, तो अगर मास ऑफ इलेक्ट्रॉन दे रखा है x टाइम मास ऑफ नया इलेक्ट्रॉन, पुराना इलेक्ट्रॉन, तो मैंने क्या कहा था तुमको, इस केस के अंदर अगर मुझे पता है एनर्जी जो है वो मास ऑफ इलेक्ट्रॉन के प्रोपोर्शनल है, अगर मास ऑफ इलेक्ट्रॉन डबल हो गया तो एनर्जी कितनी हो जाएगी? डबल, ट्रिपल हो गया तो ट्रिपल हो गया तो चलते जाएगा। हाँ, चलता जाएगा। गुड, चला तो नया एनर्जी का फॉर्मूला क्या आएगा उस केस के अंदर? x इंटू माइनस 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम इंटू एग्री? यस सर। बात Yes, sir. जब मास ऑफ इलेक्ट्रॉन बहुत छोटा होता है तो जस्ट मल्टीप्लाई कर दो, काम हो जाएगा, ठीक है? केस 2, when mass of electron becomes comparable to mass of nucleus, तो नया इलेक्ट्रॉन का मास ऑफ न्यूक्लियस से कंपैरेबल हो जाए, उस केस के अंदर क्या करोगे? रिड्यूस मास कैलकुलेट करो। वो क्या होता है? एमई डैश एमएन डिवाइड बाय एमई प्लस एमएन। तुमको पता है एनर्जी के अंदर मास ऑफ इलेक्ट्रॉन मल्टीप्लाइड है, तो मुझे मास ऑफ इलेक्ट्रॉन की जगह क्या यूज करना है? तो मुझे मास ऑफ इलेक्ट्रॉन हटाना है, तो क्या करूं? डिवाइड बाय मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। माइनस 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इंटू z स्क्वायर बाय n स्क्वायर, मैं क्या करूंगा? उसको डिवाइड करूंगा किससे? मास ऑफ इलेक्ट्रॉन से, यस और नो? और उसको मल्टीप्लाई करूंगा किससे? म्यू से। ये नहीं हो गया, इतना ही करना था और कुछ नहीं। बात समझ में आई? ओके, तो चलो अब दिस। यस सर। Yes, sir. चलो, वेरी गुड। सर 1 मिनट। हाँ, सर वो लास्ट टाइम मल्टीप्लाई किससे किया है? रिड्यूस मास, रुक जा, रिड्यूस मास से।
मैंने ओके कहा था सर। ना मास ऑफ इलेक्ट्रॉन को हटा के रिड्यूस मास डालना है। हाँ सर। तो अभी हटाओ इसको। Yes, sir. Yes, sir. sir. ओके क्वेश्चन राइट। इलेक्ट्रॉन सेकेंड एनर्जी लेवल से पहले एनर्जी लेवल तक ट्रांजिशन करता है। ठीक है, लेट्स से हीलियम प्लस आयन के अंदर तो उसने ना एनर्जी दी, उस एनर्जी का लैम्डा निकाल। ठीक है, तो नॉर्मल केस में अगर मेरे को लैम्डा निकालना है ना, तो उसका डायरेक्ट फॉर्मूला क्या है? 12400 Armstrong by energy in electron volts. Yes. इस लेवल का एनर्जी कितना है? माइनस 13.6. 0.6. फोर 4 into 4. हीलियम का Z कितना है? हीलियम का Z कितना है? 2. एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है? Minus 13.6. डिवाइड बाय n स्क्वायर इनटू z स्क्वायर ना। Sir. 13.6 बाय n स्क्वायर की तो वैल्यू तुमको पता है, 13.6 सर 3.4, ये तो पता ही है ना। Sir. इनटू z स्क्वायर करना पड़ेगा ना। Sir. हाँ तो 4 इनटू 4 4. इधर क्या करूं? Minus 3.4 माइनस into 4. 3.4 into 4. एग्री। Yes, दोनों sir. के बीच का डिफरेंस कितना है? 10.2. 10.2 into 4. into 4 10.2 into 4 4. 2.8। एग्री। Yes, sir. वेरी गुड। तो लैम्डा कितना हुआ? 12400. 12400. 400 Armstrong by 40.8. 40 पॉइंट। एग्री। Yes, sir. yes sir ये Yes, तो sir. तुम्हारा नॉर्मल कंडीशन में आंसर आया। एक बार बताओ, जो फ्रीक्वेंसी है वो एनर्जी के प्रोपोर्शनल होती है। Yes, sir. yes sir. जितना भी ज्यादा एनर्जी रहेगा उसके प्रोपोर्शनल रहेगी, राइट। एनर्जी किसके प्रोपोर्शनल होती है? अगर मैं फॉर्मूले की बात करूं तो एनर्जी ME. मास ऑफ इलेक्ट्रॉन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है कि इनवर्सली प्रोपोर्शनल है? Directly proportional. ये वाली एनर्जी मास ऑफ इलेक्ट्रॉन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, हाँ राइट। और मुझे बताओ फ्रीक्वेंसी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल एनर्जी के, फ्रीक्वेंसी और लैम्डा में क्या रिलेशन होता है? lambda is equal to c by mu तो अगर फ्रीक्वेंसी न्यू है, लैम्डा सी बाय सॉरी न्यू है, तो सी बाय लैम्डा आएगा, करेक्ट। Yes, sir. हाँ फ्रीक्वेंसी और लैम्डा में क्या रिलेशन? Inversely proportional. Inversely proportional. तो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है ना। अगर Yes. इनवर्सली प्रोपोर्शनल है
तो फ्रीक्वेंसी एनर्जी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, और एनर्जी के इनवर्सली प्रोपोर्शनल क्या है? वेवलेंथ। हाँ या ना? Yes, sir. Yes, sir. हाँ सर। एनर्जी किसके प्रोपोर्शनल थी? मास ऑफ इलेक्ट्रॉन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल थी कि इनवर्सली थी? Directly. डायरेक्टली तो लैम्डा मास ऑफ इलेक्ट्रॉन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा कि इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा? Inversely. अच्छा, इनवर्सली। नाउ सुनो, अब सुनो, केस 2, mass of new electron becomes doubles the mass of older electron. तो क्या मैं रिड्यूस मास निकालूं क्या ऐसे काम चला लूं? रिड्यूस मास निकालो। वेरी Yes, गुड। sir. अगर मास ऑफ इलेक्ट्रॉन में इतना फर्क नहीं पड़ता है, जो तो भी जरूरत न्यूक्लियस नहीं से है कम रहता है, हम तो लोग मुझे reduce mass डायरेक्ट निकालने की जरूरत है Directly क्या? डाल सकते हैं सर। डायरेक्ट कर सकते हैं ना। मेरी बात समझ रहे हो? जब मैं Yes, सिर्फ सिंपली डबल ट्रिपल ऐसे खेलता हूँ, जब भी वो न्यूक्लियस से बहुत कम रहेगा, तो क्या मैं निगलेक्ट मतलब क्या मैं रिड्यूस मास कैलकुलेट करूँ कि डायरेक्टली डाल दूं? Directly डाल दो। डायरेक्टली सर। अब मुझे एक बात बताओ कि इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, राइट? Yes. तो अगर मास ऑफ इलेक्ट्रॉन डबल हो गया, तो जो नया लैम्डा है वो कितना हो जाएगा? हाँ Half of 12400.40.8. And divided by 40.8 into 2. तुम में से कोई ऐसा है जिसको ये चीज समझ में नहीं आई? मुझे अच्छा सुनो, और कोई है? और कोई है? सर लैम्बडा कैसे हाफ हो गया वो बस नहीं समझा। क्या क्या क्या? लैम्डा लैम्बडा हाफ कैसे हुआ वो नहीं समझा बस। वो बताऊंगा, टेंशन मत लो, ये तो फॉर्मूला पता ही है अपने को, राइट? हाँ। इसके अलावा कोई और मतलब? हाँ हाँ सब बताऊंगा, ठीक है। सुनो दोबारा सुनो, ध्यान से। हाँ, इसका एनर्जी माइनस इसका एनर्जी, सब बता रहा हूँ, रुको। इसका एनर्जी माइनस इसका एनर्जी, जो भी इसका एनर्जी डिफरेंस होगा वही होगा फोटोन का एनर्जी। जो भी एनर्जी डिफरेंस जाएगा वही एनर्जी डिफरेंस फोटोन के अंदर होगा। Yes, sir. हाँ, तो फोटोन का जो एनर्जी होता है E, उसको h न्यू कहते हैं, और न्यू को हम hc बाय लैम्डा लिखते हैं। तो जो भी एनर्जी डिफरेंस की इक्वल होगा वो एनर्जी रहेगा। अब मुझे पता है एनर्जी डिफरेंस और एनर्जी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। जो एनर्जी है इन इलेक्ट्रॉन्स Yes, sir. का वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मास ऑफ इलेक्ट्रॉन है। जो हमने फॉर्मूला लिखवाया था उसमें कहा था एनर्जी को ध्यान से देख लेना, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन के प्रोपोर्शनल। गेटिंग अ पॉइंट? तो अगर वो मास ऑफ इलेक्ट्रॉन के प्रोपोर्शनल है तो एनर्जी डिफरेंस भी मास ऑफ इलेक्ट्रॉन के प्रोपोर्शनल होगा। अगर Yes, इसको sir. डबल कर दूं, इसको डबल कर दूं तो एनर्जी डिफरेंस भी डबल होगा। हाँ सर। सिंपल है, राइट? तो अगर एनर्जी जो है फोटोन का, एनर्जी मास ऑफ इलेक्ट्रॉन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, और न्यू जो है वो 1c बाय लैम्डा होता है, तो एनर्जी लैम्डा की इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। तो जो लैम्डा हो गया वो मास ऑफ इलेक्ट्रॉन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हुआ कि इनवर्सली प्रोपोर्शनल? Inversely proportional. एनर्जी अगर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है और लैम्डा इनवर्सली प्रोपोर्शनल एनर्जी के, तो लैम्डा हो जाएगा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल की इनवर्सली प्रोपोर्शनल मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। Inversely proportional. इनवर्सली प्रोपोर्शनल। सबको इनवर्सली प्रोपोर्शनल आ गया। AM004 इतना पता लगा बेटा? हाँ या ना? श्योर? अभी भी डाउट है दोबारा बोलता हूँ, कोई दिक्कत नहीं। सर, तो लैम्डा मास ऑफ इलेक्ट्रॉन के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। अगर लैम्डा की वैल्यू इतनी है और मैंने कहा मास ऑफ इलेक्ट्रॉन 2 टाइम्स हो गया या 3 टाइम्स हो गया, जब मैं भी 2 या 3 या 4 टाइम्स बढ़ाता हूँ
तभी भी मास ऑफ इलेक्ट्रॉन मास ऑफ न्यूक्लियस से कम रहता है, तो उसमें रिड्यूस मास कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है, तो तुम डायरेक्टली डबल ट्रिपल कर सकते हो। ठीक है, अब एक बात बताओ, मैंने कहा जो मास नया मास है इलेक्ट्रॉन का ना हाइपोथेटिकल, वो 2 टाइम्स हो गया पुराने मास से। अगर मास ऑफ नया इलेक्ट्रॉन पुराने मास के डबल हो गया, जो वेवलेंथ है वो मास से इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। हाँ यस सर। हाँ, डिवाइड बाय 2 कर दिया उसने। हाँ, अभी समझ में आया सबको? हाँ सर। यस सर। यस सर। यस सर। अभी कोई है जिसको ये समझ में नहीं आया? यो बप। अभी कोई है जिसको नहीं समझ में आया? नहीं, अभी भी कोई नहीं। ए V011 तेरे को समझ में आया कि नहीं आया? आ गया, चलो। अब इसी केस के अंदर ना केस 3 लेते हैं। केस 3 में मैंने क्या बोला, जो मास ऑफ न्यूक्लियस है, मास ऑफ न्यूक्लियस है, छोड़ो मास ऑफ न्यूक्लियस, एक काम करते हैं। मैंने क्या बोला, मास ऑफ न्यूट्रॉन और मास ऑफ प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन के मास के इक्वल हो गया, तो मैंने प्रोटॉन का मास भी मास ऑफ इलेक्ट्रॉन के इक्वल कर दिया, न्यूट्रॉन का मास भी मास ऑफ इलेक्ट्रॉन के इक्वल कर दिया। अब मुझे एक बात बताओ, न्यूक्लियस का मास कितना हुआ? 2 times mass of 2 ME. electron. 2 ME. हाँ, मास ऑफ न्यूक्लियस क्या हुआ? 4 ME. एग्जैक्टली। और न्यूक्लियस के अंदर क्या है? 2 न्यूट्रॉन है और 2 प्रोटॉन। प्रोटॉन। अगर 2 न्यूट्रॉन है 2 प्रोटॉन है तो टोटल कितना हुआ? 4 ME. 4 मतलब सबका मास ऑफ इलेक्ट्रॉन के इक्वल है, तो 4 हाँ सर। मास ऑफ न्यूक्लियस will become equal to 2 times mass of neutron plus 2 times mass of proton, which comes out to be 4 times mass of electron. Any doubt? नो सर। No sir. No sir. तो जब भी मास ऑफ न्यूक्लियस कंपैरेबल हो जाता है मास ऑफ इलेक्ट्रॉन के, तो उस केस में क्या करूं? रिड्यूस मास हाँ, रिड्यूस मास निकालो। करेक्ट। तो रिड्यूस मास का फॉर्मूला बताओ। Me into N by Me plus Mn. हाँ, Me into Mn divided by Me plus Mn. Correct? ME यस dash सर। Me ME dash So यहाँ पर reduce mass क्यों निकाला? Me तो Me रहेगा ना, मैं तो न्यूक्लियस का मास चेंज किया है। Mn का क्या रहेगा? 4 ME. 4 Me. Divided by Me plus 4 Me. 5 ME. 5 ME। 5 Me. Me से Me गया तो बचा क्या? 4 by 5 Me. तो अब मास ऑफ इलेक्ट्रॉन की जगह क्या डालना पड़ेगा मेरे को? सर यहाँ पर reduce mass क्यों निकाला? बेटा एक बता, रिड्यूस मास तभी फंक्शनल होता है जब मास ऑफ न्यूक्लियस और इलेक्ट्रॉन कंपैरेबल हो जाए। ठीक है, जब तक मास ऑफ न्यूक्लियस और इलेक्ट्रॉन कंपैरेबल नहीं होगा तब तक क्या होगा? इतना फर्क नहीं पड़ेगा। फॉर एग्जांपल, रिड्यूस मास मास ऑफ न्यूक्लियस इलेक्ट्रॉन के मास से बहुत ज्यादा है, तो मास ऑफ इलेक्ट्रॉन प्लस मास ऑफ न्यूक्लियस क्या हो जाएगा? अप्रोक्सीमेटली मास ऑफ न्यूक्लियस। अगर मास ऑफ न्यूक्लियस इलेक्ट्रॉन के मास से बहुत ज्यादा है तो Me प्लस Mn किसके इक्वल हो जाएगा भाई? Yes sir. नहीं, किसके इक्वल होगा? 5 ME. 5 में। दोबारा बोलूं, जब Me और Mn न्यूक्लियस का मास इलेक्ट्रॉन के मास से बहुत ज्यादा है तो Me प्लस Mn किसके इक्वल होगा?
Mn. mn 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 और mn ऊपर से कट जाएगा, yes sir तो जो नया मास रिड्यूस मास होगा वो नया मास ऑफ इलेक्ट्रॉन ही होगा, yes sir इसलिए मुझे रिड्यूस मास कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है। डबल हो गया डबल कर दो, हाफ हो गया हाफ कर दो, ठीक है सर समझा? हाँ और जब कंपैरेबल होता है तब तब चेंज होता है, तो उस केस के अंदर मैं इसको निगलेक्ट कर सकता हूँ कि नहीं कर सकता हूँ? मास ऑफ इलेक्ट्रॉन को निगलेक्ट कर सकते हैं। जब कंपैरेबल हो गया तो नहीं सर, तब नहीं कर सकते। तो अब नहीं कर सकते सर नहीं, कंपैरेबल होगा तभी नहीं कर सकते। तब रिड्यूस मास कैलकुलेट करना पड़ेगा ना। हाँ यस सर। किया हाँ, तो कभी मुझे करना पता पड़ेगा। रिड्यूस मास कितना आया। 4/5 ME। अच्छा, और जो लैम्डा है वो मास ऑफ इलेक्ट्रॉन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है कि इनवर्सली प्रोपोर्शनल है? इनवर्सली। इनवर्स अगर एक बार बताओ, मुझे लैम्डा मिला 12400 एंगस्ट्रॉम डिवाइड बाय 40.8 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, मुझे पता है ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल है मास ऑफ इलेक्ट्रॉन के, तो पहले तो मेरे को मास ऑफ इलेक्ट्रॉन हटाना पड़ेगा, तो क्या करूं? मल्टीप्लाई। मल्टीप्लाई। और मास ऑफ इलेक्ट्रॉन की जगह क्या डालना है मेरे को? 4/5 4/5 ME। हाँ, रिड्यूस so मास। that is 5/4 तो अगर ये मास ऑफ इलेक्ट्रॉन की इनवर्सली प्रोपोर्शनल है तो मल्टीप्लाई किया, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन हट गया और उसकी जगह क्या डाला मैंने? रिड्यूस मास। किसी को इस कॉन्सेप्ट में डाउट है? मैथ्स है, प्योर मैथ्स। नहीं सर। 12400 एंगस्ट्रॉम डिवाइड बाय 40.8 into ME divided by 4/5 ME, 5/4 into 40.8 into 12400 ये नया वेवलेंथ आएगा। समझ में आया यूज कैसे करना है? यस सर। यस सर, यस सर। हटाओ। यस सर। एक मिनट सर हाँ, लिख लो लिख लो। ए बच्चा पार्टी समझ में आया तुमको? कोई ऐसा है जिसको अभी भी समझ नहीं आया? समझ में आया सर। वेरी गुड। अच्छा क्वेश्चन दो ना इस कॉन्सेप्ट देता हूँ बेटा। डन सर वेरी गुड, चलो ठीक है। अभी क्वेश्चन करते हैं ढंग का। हाँ, चलो नाउ व्हाट विल बी डूइंग?
feel factor, right? Listen, Be 3 plus ion है, ठीक है. इलेक्ट्रॉन जंप कर रहा है फोर्थ से सेकंड शेल, फोर्थ से सेकंड शेल पे, ठीक है. इस भाई साहब ने क्या किया, एक फोटोन दिया, ये फोटोन बम्बार्ड कर रहा है एक इलेक्ट्रॉन पे, ये फोटोन बम्बार्ड कर रहा है एक इलेक्ट्रॉन पे. इस इलेक्ट्रॉन का वर्क फंक्शन देखा है, वर्क फंक्शन 1.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट. ये इलेक्ट्रॉन बाहर आया, इसका मुझे वेवलेंथ बताना, वेवलेंथ ऑफ दिस इलेक्ट्रॉन, ठीक है. नाउ लिसन 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 दिया हुआ है, दिस सिस्टम is there in a hypothetical universe. जहां पे मास ऑफ न्यूट्रॉन मास ऑफ प्रोटॉन के इक्वल है, राइट. और ये जो है वो 2 टाइम्स मास ऑफ इलेक्ट्रॉन है. गेटिंग इट? So mass of neutron is equal to mass of proton, which is equal to 2 times mass of electron. ठीक है, तो मुझे ना उस इलेक्ट्रॉन का वेवलेंथ चाहिए. क्वेश्चन समझ में आया सबको? अरे बिना हाँ बोले हुए सॉल्व करने नहीं लगते, पता तुमको कितना इरिटेशन. चलो ग्रेट. मास नंबर, बेरिलियम का मास नंबर क्या है? 94. एटॉमिक नंबर 4, मास नंबर 9. बेरिलियम मास नंबर 9. करो मुझे लैम्डा ऑफ इलेक्ट्रॉन का एक्सप्रेशन दे दो, मुझे फर्क नहीं पड़ता. पूरा कैलकुलेट मत करो, अंडर रूट में दे दो नीचे एनर्जी, चलेगा मेरे को. बट वो एनर्जी की वैल्यू सेम होता ही होनी चाहिए. Okay, shall we start? जब कर रहे हो, you want some more time? सर 2 मिनट. Okay. Waiting.
So done. Done. Good. Other people? Done, sir. Yes sir, मतलब एक मिनट. ओके. तो लैम्डा ही करना है ना, दूसरा कुछ नहीं करना है ना? लैम्डा इलेक्ट्रॉन का निकालना है बेटा. ओके ओके. Very good. There are 70 students, no, sorry, 68 students, right? Among you, who all have problem in this? Very good. Very good. Very good. Okay. Yeah, very good. Okay. थोड़ा सा इशू लग रहा है उसको दिक्कत. Next Sunday. Okay. Listen. हाँ. तो एक बात बताओ. पहले जब मास ऑफ न्यूक्लियस और मास न्यूट्रॉन मास ऑफ प्रोटॉन की इक्वल हो गया, which is 2 times मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, तो मुझे एक बात बताओ कितना होगा बेरिलियम का मास? मास ऑफ न्यूक्लियस विल बी 9 times मास ऑफ न्यूट्रॉन. कितना आएगा? 18 ME. 5 times mass of neutron plus 4 times mass of proton to become 18 times mass of electron. कोई डाउट? कोई डाउट इसके अंदर? तो मुझे क्या कैलकुलेट करना है इसके अंदर? रिड्यूस मास. Reduced mass will be equal to mass of nucleus into mass of electron divided by mass of nucleus plus mass of electron. That comes out to be 18 Me into Me divided by 18 Me plus Me. So I'll be getting 18 by 19 ME 18 by 19 Me. into ME. इतना आइडिया आ गया? Yes, sir. वेरी गुड. तो एक बात बताओ, जब नया रिड्यूस मास मास ऑफ इलेक्ट्रॉन के इक्वल हो गया तो एनर्जी कितनी हो जाएगी? एनर्जी जो है सेकेंड लेवल की कितनी है? -3.4 into z square. -13.6 into z square by n square होता है ना? हाँ. -3.4 into z square. z square कितना है? 16 डिवाइड बाय n स्क्वायर कितना है? 4. तो आ जाएगा 13.6 into 4. यहाँ पे आ जाओ. -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट into z square by n square. तो 4 square by n square 4 square गया. तो -13.6 एंड ये. अच्छा अगर बताओ एनर्जी ओरिजिनली इतनी थी, अब मेरे को मास ऑफ इलेक्ट्रॉन की जगह क्या पुट करना है? रिड्यूस मास. हाँ तोड़ लो, सब तोड़ लो. मास ऑफ इलेक्ट्रॉन की जगह क्या पुट करना है मेरे को? Reduce mass. तो पहले मास ऑफ इलेक्ट्रॉन हटाना पड़ेगा. हाँ. तो पहले किससे डिवाइड करो? मास ऑफ इलेक्ट्रॉन. और उससे मल्टीप्लाई किससे करो? Reduce mass. मतलब क्या होगा? एम से डिवाइड किया, इससे मल्टीप्लाई किया, इनको 18 का 19 हो गया. इनको 18 का 19 हो गया. गलत है सही है ये बताओ? अरे एम से डिवाइड किया, इससे मल्टीप्लाई किया, एम गया, बचा 18.9 को डाल दिया. कोई दिक्कत? नहीं सर. नहीं सर.
तो फोटोन का एनर्जी क्या होगा? इन दोनों का एनर्जी डिफरेंस Yes. which is equal to 18 by 19 into 3 into 13.6. कोई दिक्कत, नहीं कोई सर, परेशानी? Nice, sir. तो ये किसका एनर्जी है? फोटोन का जनरेट हुआ इलेक्ट्रॉन का निकलने के लिए कितना चाहिए? 1.2. तो काइनेटिक एनर्जी कितनी आएगी इलेक्ट्रॉन? 18 by 19 into 13.6 into 3 minus 18 by 19 into 13.6 into 3 minus 1.2. आगे ना, yes sir. अब जब काइनेटिक एनर्जी इलेक्ट्रॉन वोल्ट में है, काइनेटिक एनर्जी इलेक्ट्रॉन वोल्ट में है, तो डायरेक्टली लैम्डा कितना होगा इलेक्ट्रॉन का? 12400 divided by energy. रूट ऑफ काइनेटिक Potential एनर्जी इलेक्ट्रॉन वोल्ट, याद है? हाँ सर. Yes. हाँ, किस ने ऐसा किया? सर मेरा आया इतना. हाँ, तो मेरा सर मैं बस इसको सॉल्व कर रहा था काइनेटिक एनर्जी. नहीं, भूल जा समझ में आया? यस सर. मेरा सर, वेरी गुड. अच्छा, किसी कोई ऐसा है जिसका नहीं आया ये? अरे बोलोगे तो काम चलेगा ना. कोई ऐसा है नहीं आया जिसका ये? सबका आ गया? अच्छा, मैं तो काइनेटिक एनर्जी पर ही अटका था सर. अच्छा, 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 अच्छा. You divide with lambda 18 by 19. हाँ, वेरी गुड. डायरेक्टली तुम डिवाइड कर सकते हो, लैम्डा फाइंड आउट करिए, कोई दिक्कत नहीं. बट उसको डिवाइड करना, मल्टीप्लाई नहीं करना. ठीक है. अच्छा, मेरी बात सुनो. तुम में से किसी ये डाउट है किसी को कि कौन सा लैम्डा वाला फॉर्मूला यूज करना है? 12.24 डिवाइड बाय ये वाला, क्या 12400 ये वाला? ये डाउट है, राइट? यार एक बात बताओ, फोटोन और पार्टिकल में फर्क होता है ना? सॉरी, फोटोन और मैटर दोनों में फर्क होता है. आई नो फोटोन इज अ टाइप ऑफ मैटर, बट उसको हम मासलेस एंटिटी ट्रीट करते हैं, है ना? जब भी फोटोन की बात हो ना, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस की बात हो, तो लैम्डा क्या यूज करोगे? C/न्यू. और डायरेक्टली कैसे निकालोगे? बोर वाले फॉर्मूले से 12400 डिवाइड बाय एनर्जी इन इलेक्ट्रॉन वोल्ट. तो ये उसके लिए है जो लाइट है, फोटोन है. और अगर मैटर वेव की बात करूं, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन जब मूव कर रहे हैं, टेनिस बॉल मूव कर रही है, तो उसके लिए जो डायरेक्टली लैम्डा निकलता है, ठीक है, वो होता है h/p. अब वो h/p फॉर्मूला यूज करके मैंने इलेक्ट्रॉन के लिए डायरेक्टली निकाला लैम्डा, सिर्फ इलेक्ट्रॉन के लिए. हाँ, क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स के ऊपर बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं. तो लैम्डा ऑफ इलेक्ट्रॉन मैंने निकाला कि अगर इलेक्ट्रॉन की एनर्जी इलेक्ट्रॉन वोल्ट में दे रखी है, काइनेटिक एनर्जी दे रखी है इलेक्ट्रॉन वोल्ट में, तो उसका जो डायरेक्ट लैम्डा होगा दैट इज 12.24 एंगस्ट्रॉम डिवाइड बाय एनर्जी इन इलेक्ट्रॉन वोल्ट. बात समझ में है कि कौन सा फॉर्मूला कहाँ यूज करना है? इलेक्ट्रॉन का वेवलेंथ निकालना है, मैटर हो गया तो 12.24 एंगस्ट्रॉम डिवाइड बाय रूट ऑफ इलेक्ट्रॉन वोल्ट. और अगर फोटोन का निकालना है तो अपना ये 12400 डिवाइड बाय एनर्जी इन इलेक्ट्रॉन वोल्ट. बात समझ में आई? यस ओए, यू हैड अ डाउट राइट कि कौन सा फॉर्मूला कब यूज करना है? अब तुम में से इस चक्कर में कौन कौन फंसा? क्योंकि मुझे पता है रिड्यूस मास के अंदर कोई नहीं फंसेगा इतना सब कुछ करने के बाद. हाँ, 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 चलो ग्रेट. अच्छा, या क्या तो रहा हूँ, इसमें ही फंसोगे और कुछ नहीं है. अटका पर बाद में समझ आ गया. ग्रेट, नाइस. नाउ
up, sir, can you give one more such type of sum? I'll do one thing in assignment, I'll make and give it to you. ठीक है? 5 क्वेश्चन बनाता हूँ जो तुमको देता हूँ. हाँ, तो आई गेस सबके डाउट क्लियर हो गए अभी. कोई बच्चा है अभी बीच में किसी ने रेज किया था हैंड? चलो डन. हाँ, अच्छा ये क्वेश्चंस में और नहीं मिलेंगे तुमको. आई जस्ट डू वन थिंग, मैं मतलब देखता हूँ मेरे पास कितना कलेक्शन है, या फिर नहीं है तो मैं खुद बना के भेजता हूँ. ठीक है? सही है? Yes. ये Yes, वाला sir. क्वेश्चन कहीं नहीं है, ज्यादा नहीं है, बहुत कम है, रैरली मिलेंगे. ठीक है, तो बना के भेजता हूँ. और कुछ किसी को डाउट? No, sir. नहीं? क्लियर? डन. चलो खाना वाना ब्रेकफास्ट कर लो जिसने नहीं किया. ठीक है? Bye, sir. Thank you, sir. हाँ बेटा, टेक केयर. थैंक यू सर, बाय. बेटा.